Hello students, welcome to Roots 2020 second class of Applied Mathematics. Today we will study about complementary angle. As I have discussed in earlier class that complementary angles is when two angles sum up to 90 degree, then it's known as complementary angle. So what is the perfect definition? Two angles are said to be complementary angle if their sum is 90 degree. Okay, so if suppose one angle is theta and another will be 90 degree minus theta are complementary angle. This is the perfect definition of complementary angle. Okay, so I'm just explaining you in trigonometry how we are using the complementary property. So in trigonometry properties, as I have discussed in last class, that if suppose this is 90 degree, this is 90 degree, and I have considered this angle theta, then we will call this angle as 90 degree minus theta. Okay, so this is 90 degree minus theta. So what I have discussed that suppose this is P, Q and R, and here P according to as per this theta, this one is our perpendicular, this one is our base, and this one is our hypotenuse. But if we will take according to 90 degree minus theta, this one will be our perpendicular, and this one PQ will be our base, and this one is our hypotenuse. So students, see here I just want to explain this, that sine, suppose you have to write it sine 90 degree minus theta. So what you will write? Sine 90 degree minus theta. Then in this case 90 degree, we are considering this angle. So if we are considering this angle, then this opposite one is our perpendicular. So RQ will become our perpendicular, and hypotenuse is PR. Okay, so this one is our perpendicular upper one, and perpendicular, and this one is our hypotenuse. Okay, so this is 90 degree, and if suppose you have to write the value of cos theta. Okay, now what will be the value of cos theta? If this is theta, okay, if this is theta, then this one ये वाला जो इसके ठीक सामने है PQ, ये हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा और RQ हमारा बेस कहलाएगा. तो हम लोग RQ बाई PR लिखेंगे. तो फिर से तो हमारा देखो यहाँ पे ये दोनों के से हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. सिमिलरली स्टूडेंट्स, हम लोग ये हमारा क्या हो गया, पहला फॉर्म हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का. अब हम लोग सेकंड क्या फार्मूला इसका, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है. फिर टैन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है कॉट थीटा. फिर नेक्स्ट हमारा है कि अगर हम लोग कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा लिखना हुआ तो हम लोग लिखेंगे सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा. ठीक है. सिमिलरली अगर हम लोगों को लिखना होगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा तो हम लोग लिखेंगे टैन थीटा. तो ये हमारे सारे क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए. एंड दीज 6 फार्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज यू हैव डन all the questions related to all these 6 complementary conditions in your junior classes. So these are the very important. Now students, I am just explaining some few questions which uses these 6 properties. Number 1, suppose you have to find the value of sine 29 degree minus
cos 61 degree. So how we will find the value of this sin 29 degree minus cos 61 degree? See, in place of this we can write it sin 29 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं sin 90 डिग्री माइनस 61 डिग्री। बोलो 90 डिग्री में से अगर 61 डिग्री माइनस करेंगे तो 29 डिग्री ही आएगा और माइनस कॉस 61 डिग्री है ही। अब आप बताओ, अभी तुरंत हम लोग नाउ वी नो द फॉर्मूला, हम लोग वो फॉर्मूला जानते हैं। और हम फॉर्मूला क्या जानते हैं? वी नो द फॉर्मूला। और हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के। तो देखो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 90 डिग्री माइनस 61 डिग्री की जगह पे कॉस 61 डिग्री माइनस कॉस 61 डिग्री, ये और ये कैंसिल हो गया और आपका वैल्यू क्या आ गया? 0। सिमिलरली देखो एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि मान लो आपको प्रूव करना है साइन 43 डिग्री कॉस 47 डिग्री प्लस कॉस 43 डिग्री साइन 47 डिग्री इक्वल टू 1। तो देखो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे? ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। साइन 43 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री, और यहाँ पे आपका कॉस 47 डिग्री तो है ही लिखा हुआ, ठीक है ना। कॉस 47 डिग्री है लिखा हुआ, और यहाँ पे कॉस 43 डिग्री को हम लोग कॉस 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री लिख सकते हैं। और मेरा साइन 47 डिग्री तो है, उसको चेंज नहीं करना है। तो आप देखो साइन 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री, अभी तुरंत पढ़े कि हम लोग क्या पढ़े कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो ये वैल्यू मेरा हो जाएगा कॉस 47 डिग्री इंटू कॉस 47 डिग्री प्लस ये वाला भी आपका हो जाएगा कॉस, ये देखो ये तो आपका चेंज हो जाएगा साइन 47 डिग्री इंटू साइन 47 डिग्री, ठीक है। तो ये देखो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 47 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 47 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं बाय द आइडेंटिटी, क्या जानते थे कि हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे आपका इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। और इसमें हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? यही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्री के। नाउ स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है जहाँ पे आपको शो करना है कि ABC आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC शो डैट साइन B प्लस A/2 इज इक्वल टू कॉस A/2। तो देखो हम लोग इसको कैसे शो करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये मेरा जो भी है, अगर हम साइन कॉस लगा रहे हैं तो मेरा ट्रायंगल कैसा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और ABC बोला ट्रायंगल, तो हम ट्रायंगल ABC ले लिए। अच्छा आप बताओ, हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि तीनों एंगल का सम, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, चाहे ये 90 डिग्री हो या ना हो, कोई भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम, वी नो डैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये तो हम लोग जानते हैं, ये तो हम लोग एकदम जूनियर क्लासेस में ही पढ़े थे, क्लास 8, 9, 10, 8 में ही हमारे ट्रायंगल्स चैप्टर में था कि है ना, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू हम 180 डिग्री लिखते हैं। अब चूँकि B प्लस C और को एक जगह लिखा हुआ और एक तरफ चला गया, तो हम ऐसा करते हैं एंगल B प्लस एंगल C को एक तरफ और 180 डिग्री माइनस एंगल A लिख दे रहे हैं, ठीक है। नाउ चूँकि यहाँ पे बाई 2 है, क्वेश्चन ही से देखो हम ये आगे सॉल्व करते जा रहे हैं। नाउ डिवाइडिंग बाय 2, तो हम लोग को क्या मिलेगा? एंगल B प्लस एंगल C/2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल A/2। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे? एंगल B प्लस एंगल C/2 इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2, ये इसको हम देखो स्प्लिट करके लिख रहे हैं ऐसे, माइनस एंगल A/2। तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल A/2।
अब हम लोग देखो हमारे पास क्या आ गया फाइनली कि एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2। अब हम दोनों तरफ, चूँकि यहाँ पे साइन है तो हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, साइन। अगर टेकिंग बोथ साइड साइन, वी गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा, साइन ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2। तो ये आपका हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा साइन ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 डिग्री है, क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू अभी तुरंत हम लोग पढ़े कॉम्प्लीमेंट्री में कि कॉस थीटा होता है, डेट इज एंगल ए बाई 2। तो यही तो हमें प्रूव करना था, तो हमारा ये क्या हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, उसके बाद भी बहुत सारा क्वेश्चंस रहता है स्टूडेंट्स, जैसे कि एक क्वेश्चन और हम लेके चल रहे हैं कि इफ़ ए एंड बी को मान लिए आर एक्यूट एंगल, हम मान रहे हैं कि ये एक्यूट एंगल है, तो सच डैट, और ऐसा दिया हुआ है सच डैट साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी, तो हमें प्रूव करना है, प्रूफ डैट कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो देखो हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे यहाँ पे दिया हुआ क्या है मेरे पास, साइन ए इक्वल टू कॉस बी, यही मेरा गिवन है। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं कि कॉस बी को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस बी, बोलो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यही पढ़े हैं ना। तो हम लोग जस्ट इसी को लिख रहे हैं, अगर कॉस बी लिखा हुआ तो हम उसे साइन 90 डिग्री माइनस बी लिख दिए। अब आपका देखो यहाँ पर हम लोगों का साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये इधर का साइन और इधर का साइन हट गया, तो ए बराबर मेरा क्या बचा, 90 डिग्री माइनस बी। तो इस तरह से ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और ये प्रूव हो गया। तो देखो ये सब छोटा छोटा एप्लीकेशंस है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, और एक हम आप लोगों को जस्ट एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको आपको सॉल्व करके चेक करना है कि मेरा इसका वैल्यू क्या आता है। ये क्वेश्चन है, ये आप लोग सॉल्व करके अभी देखोगे कि साइन 50 डिग्री बाई, और लाइव सेशन में मुझे इसका आंसर बताओगे कि इसका आंसर आप लोगों ने क्या लाया सॉल्व करके, कॉसेक 40 डिग्री बाई सेक 50 डिग्री माइनस 4 कॉस 52 डिग्री कॉसेक 38 डिग्री। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप लोग काइंडली आप लोग सबको ही सॉल्व करो और बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। आपको यहाँ पे 50 डिग्री 40 डिग्री 52 और 38 डिग्री ये सब का वैल्यूज़ नहीं निकालना है, ये यहाँ पे आप लोगों को ये सारा कुछ का वैल्यूज़ नहीं निकालना है आपको, मतलब वैल्यू मतलब कि है ना, ये नहीं कि हम है ना कैलकुलेटर में देख लिए कि साइन 50 डिग्री का क्या वैल्यू होता है उसको सब्सटीट्यूट कर रहे हैं और आंसर ला रहे हैं। आपको सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री लॉ वाला प्रॉपर्टी को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग है ना लाइव क्लास में देखेंगे कि किसका क्या क्या आंसर आया है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स कि हाउ वी विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। नाउ स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है जो कि थोड़ा बहुत ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन होता है कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ठीक है, और उसके बाद हमारा ऐसे सो ऑन बढ़ते बढ़ते tan 89 डिग्री है। तो आपको इसका वैल्यू बताना है कि क्या होगा। ठीक है, आपको इसका वैल्यू बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो हम लोग इसको कैसे, तो देखो इसका हम लोग वैल्यू कैसे बताएंगे। tan 1 डिग्री है तो tan 1 डिग्री है, और इधर देखो tan 89 डिग्री है, तो tan 89 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, cot 1 डिग्री बन जाएगा। और tan 1 डिग्री और cot 1 डिग्री को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, tan 1 डिग्री और cot 1 डिग्री को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा,
tan 1 डिग्री और cot 1 डिग्री का मल्टीप्लिकेशन, तो हमें ये दोनों का tan 1 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cot 1 डिग्री का मल्टीप्लिकेशन 1 मिलेगा। तो इस तरह से ये और ये जो है मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा। सिमिलरली 2 डिग्री और 88 डिग्री का मल्टीप्लिकेशन हमें 1 मिलेगा। 3 डिग्री और 87 डिग्री का मल्टीप्लिकेशन 1 मिलेगा। और फाइनली हम लोगों का बीच का जो वैल्यू है tan 45 डिग्री, उसका हमें किसी के साथ भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, तो tan 45 ही डिग्री सिर्फ बचेगा और इसका वैल्यू भी 1 होता है। तो ये मेरा जो पूरा टेबल है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। अब ये एक और क्वेश्चन होता है कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, ऐसा करते करते cos 180 डिग्री का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो इस केस में आप बताओ कि इसका वैल्यू क्या हो सकता है। हम लोग को तो कुछ इसमें सोचने का ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग क्या जानते हैं कि cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो cos 90 डिग्री का अगर वैल्यू 0 होता है तो हम लोग सिंपली अगर इस पूरे एंगल में मेरा cos 90 डिग्री जो है वो आ रहा है, क्योंकि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री और ऐसे करते करते ये cos 180 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री का अगर वैल्यू 0 आ रहा है तो वो मेरा क्या हो जाएगा, इस पूरे टर्म को ही 0 बना देगा और ये पूरा एंगल मेरा जो है वो उसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका पूरा आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। Now students we will study the topic height and distance. In height and distance very important is line of sight. तो line of sight का मतलब क्या होता है, when an observer looks, मान लो कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जर्वर है और यहाँ पे वो एक ट्री को देख रहा है, तो when an observer looks from a point O, ये जो पॉइंट है वो O पॉइंट है, at an object P, देन द लाइन ऑफ साइट, ये मान लो ऑब्जेक्ट P है, तो देन OP जो है यहाँ से यहाँ तक का जो ये लेंथ है OP, इसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ साइट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। उसके बाद देखो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। आप लोग सबको इसका नाम तो सुने हो। एंगल ऑफ एलिवेशन देखो क्या होता है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सपोज़ कि कोई ऑब्जर्वर है O और वो P पॉइंट को देख रहा है। ठीक है, ये OP हो गया उसका लाइन ऑफ साइट और ये हो गया उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, X। तो हॉरिजॉन्टल, इस एक्सिस को हम लोग कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन और ये आपका क्या है, लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है, थीटा मान के चलो, उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, कोई ऑब्जर्वर है वो P पॉइंट को देख रहा है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये लोग दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग उसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, ये तब हमारा हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन और फिर हो गया लाइन ऑफ साइट। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। आप लोग नाम सुने होंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, मान लो कोई ऑब्जर्वर है O और वो नीचे की तरफ देख रहा है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ऑब्जर्वर अपने से ऊपर की तरफ देख रहा था, ये उसका लाइन ऑफ साइट था। ठीक है, और ये उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस था। लेकिन जब हम मान लो छत पे खड़े हैं, ठीक है, और वहाँ से अगर हम लोग नीचे की तरफ कोई देख रहे हैं, कोई P ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो हमारा ऐसा बनेगा। ठीक है, X। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइट, तो ये हो गया जिस दिशा में हम लोग देख रहे हैं लाइन ऑफ साइट, और ये आपका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये दोनों के बीच में जो एंगल बनता है इसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब हम लोग कोई चीज़ ऊपर से नीचे देखते हैं तब हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, और जब हम लोग
पर ही रहते हैं, तो ये जब हम लोग नीचे से ऊपर देखते हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। इसके बाद देखो हम लोग यहाँ पे हमारा कैसा होना चाहिए, लाइन ऑफ साइट ऊपर से नीचे की तरफ आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हाइट एंड डिस्टेंस में ना ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि लाइन ऑफ साइट किसे कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं, और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओनली स्टूडेंट्स यू हैव टू कीप टू थिंग्स इन योर माइंड दैट व्हेन यू एन ऑब्जर्वर लुक्स फ्रॉम इट्स पोजीशन टू अपवर्ड, ऊपर की तरफ, देन इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप की तरफ देखे। और जब वो ऊपर से जब डाउन की तरफ देखे, डिप्रेशन नाम से ही लग रहा है ना, डिप्रेशन मतलब कि नीचे की तरफ, डिप्रेशन। और यहाँ पे एलिवेशन मतलब एलिवेट करना, एलिवेट मतलब कि ऊपर की तरफ। तो ये हो गया हाइट एंड डिस्टेंस का, यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चंस बताते हैं जिसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि इन अ वायलेंट स्टॉर्म, एक वायलेंट स्टॉर्म में, बहुत तेज स्टॉर्म में, तूफान में क्या हुआ कि अ ट्री गॉट बेंट बाय द विंड। जो ट्री है वो बेंट हो गया बाय द विंड। बेंट हो जाने का मतलब क्या होता है कि मान लो कि ये आपका पहला कैसे था, ट्री था, ठीक है। अब ये ट्री क्या हो गया कि बेंट हो गया, ऐसा टूट गया और टूट के ऐसे गिर गया, ये सिचुएशन आ गया। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि द टॉप ऑफ द ट्री मीट्स द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब ये जो है वो ग्राउंड पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पे ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द रोड, ठीक है, रूट। तो देखो यहाँ रूट से ये जो ट्री है, रूट से 30 मीटर का डिस्टेंस बना रहा है। ये वाला नीचे वाला वैल्यू हमको दिया हुआ है। तो उसके बाद बोल रहा है एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम डिड द ट्री गेट बेंट, मतलब हमें ये वाला हाइट को, मान लो x है, उसे फाइंड करना है। एंड व्हाट वाज द हाइट ऑफ द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, मतलब हमको ये वाला भी हाइट निकालना है और दोनों को ऐड कर, मान लो ये y है तो हमको x प्लस, मतलब हमको x तो फाइंड करना ही है, साथ में हमको x प्लस वाई भी फाइंड करना है। तो देखो स्टूडेंट, हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले एक ट्रायंगल के फॉर्म में बना रहे हैं कि यहाँ से मेरा पेड़ टूट के ऐसे ज़मीन पे गिर गया और वो ज़मीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना दिया, और वो जो पेड़ है और रूट के बीच का डिस्टेंस 30 मीटर है। ये वाले वैल्यू को हम x मान लेते हैं और इस वैल्यू को हम y मान लेते हैं। तो हम लोग इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखो स्टूडेंट, यहाँ पे पेड़ वेड़ बना के अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो लिटिल हेक्टिक हो जाएगा। तो हमने सारे बातें कवर कर लिया कि द टॉप ऑफ द ट्री जो है वो क्या हो रहा है, द टॉप ऑफ द ट्री मीट्स द ग्राउंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये वाला भी बात हम लोग कवर कर ली कि ठीक है, हाँ 30 डिग्री है। उसके बाद बोल रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द रूट, रूट से, ये उसका रूट है, यहाँ पे गिरा है पेड़, और ये जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर का है। ये भी बात हम लोग एक्सेप्ट कर लिए। नेक्स्ट है कि एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से कितनी दूरी पर, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम डिड द ट्री गेट बेंट, व्हाट वाज द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। तो हम लोग को x निकालना है और क्या निकालना है, y निकालना है। तो देखो स्टूडेंट्स, हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग, चूँकि ये 30 डिग्री पता है और ये हमको पता है कि 90 डिग्री ही होगा, तो देखो हम इसमें ज़्यादा आपका लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, हम सिंपल इसको एक तरीका से बना रहे हैं कि अगर आप बताओ tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा। tan 30 डिग्री जो ये सामने वाला था वही परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, x बाई, ये लेंथ को हम x माने हैं, तो x बाई परपेंडिकुलर बाई बेस दैट इज़ 30। और आप बताओ tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, हम लोग उसी दिन के क्लास में पढ़े कि tan 30 डिग्री हमारा 1/√3 होता है। तो 1/√3 इक्वल टू x बाई 30, दिस इम्प्लाइज डैट x बराबर 30/√3। आप चाहो तो इसको ऐसे √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 30√3/√3 इंटू √3 3। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 10√3 आ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू हम लोग ले आए, ठीक है ना।
अब हम लोग x तो निकाल दिए, चलो ठीक है, x हमारा निकल गया, x का वैल्यू 10√3 आ गया। अब हम लोग देखो क्या निकालते हैं, y का वैल्यू। तो y निकालने के लिए चूंकि हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस चाहिए, तो ये हमको साइन दे सकता है। तो साइन 30 डिग्री अगर हम लिखेंगे तो वो परपेंडिकुलर तो x ही होगा, x बाई हाइपोटेनियस, मेरा यहाँ पे y जो है वो हाइपोटेनियस का काम कर रहा है, तो वो y हो जाएगा, x बाई वाई। अब बताओ साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2, और x का वैल्यू अभी तुरंत हम लोग 10√3 लाए, तो y, तो यहाँ से मेरा y इज इक्वल टू हो जाएगा 20√3। तो अब अगर हमसे कोई पूछा कि कहाँ से मेरा पेड़ टूटा, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम डिड द ट्री गेट बेंट, तो हम लोग कहेंगे 10√3, है ना। एंड एट व्हाट वाज द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, तो यहाँ पे अगर मेरे पास आंसर हमें लिखना होगा कि एट 10√3 मीटर फ्रॉम द bottom the tree get bent, ये हमको मिला। और दूसरा क्वेश्चन पूछा कि व्हाट वाज द ओरिजिनल हाइट, तो ओरिजिनल, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री इज, हम लोग का क्या होगा, x + 5, मतलब कि 10√3 + 20√3, मतलब कि ये हो जाएगा 30√3 आंसर। ठीक है, ये हमारा 30√3 आंसर हो गया, और यही हमारा ओरिजिनल हाइट है। उसके अलावा बहुत सारा क्वेश्चन से स्टूडेंट्स होता है जो रिफ्लेक्शन पे होता है, जैसे कि रिफ्लेक्शन मतलब कि कैसा, हम जैसे एक आपको जस्ट एग्जांपल बताते हैं कि रिफ्लेक्शन पे कैसा क्वेश्चन होता है, कि ये सब जस्ट आप लोग याद रखना कि मान लो कि एक सी है, ठीक है, ये सी है ना, ये सी है आपका, और कोई इंसान h मीटर हाइट का सी के ऊपर, मतलब सी या फिर सी से h मीटर हाइट ऊपर खड़ा है। मान लो यहाँ पे नाव चल रही है, उसके ऊपर वो खड़ा है, तो वो h मीटर हाइट का खड़ा हुआ है, और वो हमारा यहाँ से क्लाउड की ओर देख रहा है, यहाँ पे क्लाउड है उसको वो देख रहा है, ठीक है। और क्लाउड को वो जो इंसान देख रहा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमको पता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अगर पता है, मतलब यहाँ से हमको मान लो वो अल्फ़ा दिया हुआ है, तो अल्फ़ा पता है। अब उसके बाद बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्लाउड की ओर देखने का मतलब, एलिवेशन बोलने का मतलब नीचे से वो ऊपर देख रहा है, तो वो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा। और हमारा एंगल ऑफ यही क्लाउड का रिफ्लेक्शन जो है वो सी में बन रहा है। रिफ्लेक्शन मतलब इस क्लाउड का छाया, इस क्लाउड का इमेज जो है वो सी के अंदर नीचे ऐसे बन रहा है, तो वो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब हमको ऐसे जाना होगा, ये मेरा दिया हुआ है बीटा। तो देखो स्टूडेंट, हमको यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, हम यहाँ पे क्या समझाना चाह रहे हैं आप लोग को। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बस जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ हमारा इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला मतलब हम लोग नीचे की तरफ वाला एंगल बनाए, और एंगल ऑफ एलिवेशन बोला तो हम लोग ऊपर की तरफ से एंगल बनाए। ये मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है, ये मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है, और ये मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, ये मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब देखो यहाँ पे हमको कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई C के ऊपर है, यहाँ से मेरा C है शुरू, ठीक है, क्लाउड जो है वो C से कितनी ऊंचाई पर है, ये वाला उसका ऊंचाई है, ये ऊंचाई अगर उसका मान के चलो h है, तो उस C से जहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन बन रहा है वो भी हाइट मेरा क्या होगा, h होगा। बस हम यही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाले थे कि अगर मेरा ये C है, यहाँ से मेरा सी लेवल शुरू हो रहा है, तो सी लेवल से अगर क्लाउड की हाइट जो है वो h है, अगर वो क्या है h है, तो C से जो उसका रिफ्लेक्शन जहाँ पे बन रहा है वो भी हाइट मेरा h होगा।
तो जनरली स्टूडेंट्स क्लास 10th लेवल में इस तरह के इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और इसीलिए हम एक बार आपको रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट बता रहे थे कि रिफ्लेक्शन का मतलब यही होता है कि आपको क्या करना है कि कोई भी चीज़ का अगर रिफ्लेक्शन सी में बन रहा है तो उसका सी लेवल से जो उसका हाइट है उतना ही उसका सी लेवल के नीचे भी वही उसका हाइट होगा। ठीक है, तो यही एक कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको बहुत मदद करेगा हाइट एंड डिस्टेंस कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो इसको एक बार आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को आप देख सकते हो कि कैसे इसको बनाया जाएगा। इसके अलावा भी और भी क्वेश्चंस हैं जहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। और अभी हम लाइव जो सेशन लेंगे उसमें भी आपको हाइट एंड डिस्टेंस की एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने देंगे। तो आप लोग एक बार पहले थॉरोली इस वीडियो को देखो, अगर कहीं पर भी कुछ भी डाउट होगा तो अभी लाइव का सेशन होने वाला है, वहाँ पर आप लोग पूछ सकते हो। और यही आपका 10th का ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट है। इसके अलावा हम एक और जस्ट आपको एक छोटी सी चीज़ बताने वाले हैं कि देखो साइन, अगर आप साइन फंक्शन देख रहे हो तो साइन का ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। साइन का ग्राफ हमेशा 0 से शुरू होके ऐसे जाता है हमारा। ठीक है, साइन का ग्राफ मतलब ये 0 यहाँ पे, इसका मान लो यहाँ पे मेरा π/2 है, फिर यहाँ पे पाई, फिर यहाँ पे आपका पाई के बाद हो जाता है उसमें तो 3π/2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2π हो जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू मेरा जाता है, यहाँ पे उसका वैल्यू 0 होता है। तो आप लोग जानते हो साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0। फिर यहाँ पे 90 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री पे वैल्यू 1 होती है। फिर यहाँ पे आपका 0 पे आकर वैल्यू फिर से 0 हो जाता है। फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू -1 होती है, फिर यहाँ पे वैल्यू इसकी 0 हो जाती है एंड सो ऑन, ये चलता जाता है। तो अगर कोई पूछेगा साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है तो वो 1 होता है। फिर साइन पाई का मतलब 180 डिग्री, पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती है। फिर अगर हमसे कोई पूछे नहीं पाई का वैल्यू, हाँ ठीक है, पाई का मतलब हो गया आपका 180 डिग्री। उसके बाद अगर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे तो हमारा आता है 180 डिग्री। उसके बाद हम लोग 180 डिग्री में और 270 डिग्री का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2π का मतलब होता है साइन 360 डिग्री, तो 360 का वैल्यू भी फिर से मेरा 0 हो जाता है। तो ये हम लोग ग्राफ से आराम से पता कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग उसी तरह से कॉस का ग्राफ बनाएंगे। तो कॉस का ग्राफ और साइन के ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है कि वो 1 से शुरू होके ऐसे जाता है। ठीक है, वो ऐसे जाता है, मतलब वो यहाँ पे 0 पे, जब ये 0 पे वैल्यू 1 होता है, फिर 90 डिग्री पे 0 हो जाता है, ये π/2 है। फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/2 के बाद इसका वैल्यू चेंज होगा, यहाँ पे पाई हो जाएगा, तो उसमें भी इसका वैल्यू चेंज हो जाता है। फिर हमारा यहाँ पे 3π/2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2π हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे 0 हो गया। फिर पाई में इसका वैल्यू यहाँ पे है पाई में, तो वो -1 हो जाएगा। 3π/2 में इसका वैल्यू फिर से 0 हो जाएगा। 2π में इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये हमारा चेंज होता है, मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि कॉस 0 डिग्री क्या होता है तो वो 1, कॉस 90 डिग्री 0 होता है। ग्राफ से हम लोग को दिख रहा है कि 90 डिग्री पे 0 आ रहा है। कॉस 180 डिग्री आपका -1 होता है। आप लोग कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 एक और कंसेप्ट से निकाल सकते हो। हम लोग क्या जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, ये चेंज होने वाला कंसेप्ट है कि साइन यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री माइनस ऑफ साइन 90 डिग्री। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो ये भी फार्मूला एक होता है जिससे कि हम लोग निकालते हैं, लेकिन हम लोग ग्राफ से भी निकाल सकते हैं कि कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है। उसी तरह से फिर अगर हमको कॉस 270 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग 270 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे 0। फिर सिमिलरली अगर हम लोग कॉस 360 का वैल्यू निकालेंगे तो वो अभी हमारा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा कॉस का ग्राफ है और ये साइन का ग्राफ है। ये बहुत बेसिक ग्राफ है। इसके अलावा टैन का भी ग्राफ बनता है, तो वो हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसी में सीख लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इन बेसिक्स ग्राफ्स को आपको लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है,
तो अब जो भी डाउट है आप लोग लाइव सेशन में पूछिए, और इसके अलावा हम और भी कुछ हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस लेकर लाइव सेशन में रहेंगे, और होप है कि आप लोग सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। थैंक यू।